Assalamualaikum class 8. How are you? I hope you all are fine. Now we have the unit 1 social studies, Pakistan studies, assignment number 2 and they are also 2. Now students, we have a long question number 2. हम क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं. आई होप आपने बहुत अच्छे से अपना काम किया होगा. नाउ न्यू क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम. द क्वेश्चन इज व्हाट इज मीन बाय हैवी इंडस्ट्री. राइट द नेम ऑफ इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान एंड डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट द हैवी इंडस्ट्रीज फाउंड इन पाकिस्तान. यहाँ हमसे ये पूछा जा रहा है बेटा कि भारी सनतों से क्या मुराद है. पाकिस्तान की अहम सनतों के नाम लिखिए और पाकिस्तान में पाई जाने वाली अहम भारी सनतों के बारे में तफसीली बयान कीजिए. सो स्टूडेंट्स, वी आर स्टार्टिंग आवर आंसर. द आंसर इज नाउ सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड पर हेडिंग डालेंगे हैवी इंडस्ट्रीज. मेरे साथ साथ स्टार्ट करिएगा. Such industries which are stable for large scale of production by using large resources on large area to land and they run with the help of different machines are called as heavy industry. वो सनतें जो बड़े पैमाने पर ज़्यादा वसाइल को इस्तेमाल करते हुए बड़े रकबे पर लगाई जाए और उन्हें मुख्तलिफ मशीनों के ज़रिए चलाया जाए, भारी सनतें कहलाती हैं. स्टूडेंट, नेक्स्ट हम हेडिंग डालेंगे हैवी इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान. देयर आर फॉलोइंग हैवी इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान. नंबर 1 इज टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कपड़े की सनत. टेक्सटाइल इंडस्ट्री is the backbone of Pakistan economy. There are large number of big and small textile mill in Pakistan. Fine variety of cloths are manufactured in these mills. Pakistan is self-sufficient in cotton cloth. Each year, millions of foreign exchange is earned through the export of cotton cloth and yarn. Main center of textile industry are Faisalabad, Lahore and Multan in Punjab, Karachi and Hyderabad in Sindh. In NWFE, these centers are at Peshawar, Dera Ismail Khan, Naushehra, Bannu, Haripur and Sawat. Attak, Quetta are the 2 textile centers in Balochistan. About 50% of industrial labor is employed in the textile industry of Pakistan. The present number of textile mill in the country is 500 as compared to just 3 at the time of independence in 1947. स्टूडेंट्स, हमें यहाँ ये बताया जा रहा है कि जो कपड़े की सनत है वो हमारे मुल्क की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है. हर साल हम सूती कपड़े और धागे को एक्सपोर्ट करके करोड़ों रुपए ज़रिए मुबादला कमाते हैं. यहाँ मेरे पास 4 सूबों में उन शहरों के नाम हैं जिन जिन शहरों में उन कपड़े की कारखाने कायम हैं. इसके अलावा यहाँ ये बताया गया है हमें कि पाकिस्तान में जो सनती मजदूर हैं उनमें 50% सूती कपड़े की सनत से वाबस्ता है. पाकिस्तान की आज़ादी के वक्त हमारे पास सिर्फ 3 कारखाने थे, लेकिन अब हमारे पास 500 सूती कपड़े के कारखाने कायम कर रहे हैं. ऑलराइट, आई होप यू अंडरस्टैंड. Pakistan has also woolen textile industry, but it is not rich as cotton textile industry. The reason that wool in Pakistan is not high quality. Most of the wool of Pakistan is used for carpet making. However, major woolen textile center at Karachi in Sindh, Lawrencepur, Rawalpindi, Lahore, Qaidabad in Punjab, Harani, Mustang, Balochistan and Bannu are Naushehra in NWFE, where woolen yarn, blanket and woolen cloth is manufactured. At present, there are 70 woolen mills in the country.
स्टूडेंट्स, हमारे पास ऊनी कपड़े की सनत भी है, लेकिन जितनी हमारी सूती कपड़े की सनत जो है खुशहाल है, हमारी ऊनी कपड़े की सनत उतनी खुशहाल नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो हमारे यहाँ आला मयार की ऊन दस्तयाब नहीं है, तो जो ज़्यादातर हमारा ऊनी कारखाने जो हमारे चलते हैं या जो हमारी ऊन है वो ज़्यादा कालीन साजी में इस्तेमाल होती है। तो यहाँ मेरे पास उन शहरों के नाम हैं जिन शहरों में, जिन सूबों में ये कारखाने कायम हैं। The Lawrencepoor and Karachi woolen mills product high quality of woolen cloth. Pakistan has also a silk textile industry. Two types of silks are used for manufacturing silk cotton. One type is natural silk obtained from silkworm, and the other is artificial silk called stanchic silk. Since normal silk has become rare and most expensive, synthetic silk has gained popularity. There is no silk factory at Kalasha Kako near Lahore and preparing synthetic silk. This is known as rayon. Rayon silk is important for other countries. Karachi is the biggest center of silk textile industry. Silk textile is also manufactured at Faisalabad, Lahore, Multan, Gujranwala, Peshawar, Sawat, Sakhar and Hyderabad. स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि ऊनी कपड़े के कारखाने हमारे पाकिस्तान में 70 हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में रेशमी कपड़े की सनत भी है और दो तरह की रेशम हमें मिलती है। एक तो हमारी ओरिजिनल रेशम है जो हम रेशम के कीड़े से हासिल करते हैं, और एक हमारी आर्टिफिशियल है। जो हमारी आर्टिफिशियल रेशम है उसे रयान का नाम दिया जाता है। और यहाँ मेरे पास वो सूबे में उन शहरों के नाम हैं जहाँ ये रेशमी कपड़े के कारखाने कायम हैं। कराची जो है वो इस वक्त रेशमी कपड़े की सनत का सबसे अहम मरकज़ है। नाउ द नेक्स्ट इज़ शुगर इंडस्ट्री, यानी चीनी की सनत। शुगर इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री इन पाकिस्तान. Pakistan start with 2 sugar factory at Rawalpindi near Gujranwala in Punjab and Takhbai in NWFP in 1947. Sugar is made of sugarcane, which is cultivated in large quantity in the three provinces. Normally Punjab, Sindh and NWFP. Therefore, government decided to set up sugar factories in the area where sugarcane is cultivated. There are 78 sugar mills in the country, 40 in Punjab, 32 in Sindh, 6 in NWFP with capacity to produce 5 million ton of refined sugar. Pakistan not only self-sufficient in the production of sugar but also earn valuable foreign exchange through export of sugar. Pakistan sugar is best quality. स्टूडेंट्स, चीनी की सनत में हमारे पास पाकिस्तान बड़ी सनतों में से एक सनत काउंट होती है। 1947 में जब पाकिस्तान वजूद में आया था तो हमारे पास सिर्फ चीनी के 2 कारखाने मौजूद थे, लेकिन आज हमारे पास पाकिस्तान में चीनी की तैयारी के तकरीबन 78 कारखाने कायम हैं। चीनी हमें गन्ने से हासिल होती है। पाकिस्तान चीनी की पैदावार में ना सिर्फ खुद कफील है बल्कि चीनी की बरामद से कसीर ज़र मुबादला भी कमाता है। पाकिस्तान में तैयार की जाने वाली शक्कर बहुत आला मयार की होती है। स्टूडेंट्स, मेरे पास आपके लिए यही सवाल उर्दू ज़बान में भी मौजूद है जो मेरे उन तालिब इल्मों के लिए हैं जो उर्दू ज़बान में पेपर अटैम्प्ट करेंगे या जो उर्दू ज़बान में काम कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, उसी तरह मेरे पास ये पूरा सवाल मौजूद है। भारी सनत से क्या मुराद है? पाकिस्तान की अहम सनतों के नाम लिखिए। पाकिस्तान में पाई जाने वाली अहम भारी सनतों के बारे में मुफस्सिल बयान कीजिए। उसी तरह हम हेडिंग डालेंगे, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक एक चीज़ को अलहदा डिफ़ाइन किया गया है बहुत इजीली। सबसे पहले कपड़े की सनत, उसी तरह चीनी की सनत, तमाम काम आपके पास प्रॉपर उसी तरह तरतीब से मौजूद है। सो स्टूडेंट्स,
अपना काम बहुत ध्यान से, बहुत सफाई से, अच्छे से कीजिएगा। इसी के साथ हमारी क्लास का वक्त ख़त्म होता है। अपने टीचर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।